Good morning. I hope you guys have done all the remedies for solar eclipse which was yesterday. Now I'm again going back to Ganga. मैं दोबारा से गंगा के तट पर जा रहा हूँ. So the thing is this. आज है 22/6/2020. 22 मतलब 4, 6 मतलब 6 + 4 इज़ 1, 2 + 2 इज़ 4 जो साल से आता है. तो 4 + 1 इज़ 5. तो आज का दिन है इंटेलिजेंस का, आज का दिन है मरकरी का, आज का दिन है बुध का, आज का दिन है शांति से सोचने का, आज का दिन है निर्णय लेने का, आज का दिन है गाय की सेवा करने का. Today's day is for cows. If you want to enhance your intellectual abilities, and obviously you should use your intellectual abilities for yourself, for your family, and for the whole nation and the community also. So for that, give green grass or spinach or potato, raw potato to the guy, to the cow, and that is important to do that. And in addition to that, if you want to enhance your intellect, then definitely you should read something good. Today day is to read. Day मनन का दिन है, basically to मनन करने का दिन है, चिंतन करने का दिन है. So it's basically after solar eclipse, why Buddha came, because when there is some issue with your father, then your knowledge turns into wisdom. So you turn your knowledge into wisdom. You try to think right, act right. You don't have the knowledge, then try to grab it through your gurus or through your father, mother, through maybe through Ganga. Yeah. So Ganga is teaching you the wisdom that whatever impurities we are putting inside the river, it's washing them away because it's flowing. Okay. So with that, so you know the numerological aspect today, which is number 5, which is about your business, which is about your finances, which is about your intellect, which is about your wisdom, and helping yourself, your family, and your community, India as well as outside Bharat. Okay. तो अगर हम बात करें कोविड की, दिल्ली में स्पेसिफिकली, तो कोविड people were saying that it will go after solar eclipse. Sorry, that's a no. The thing is this, on 30th of June, Jupiter is just transiting back into Dhanu, which is your, I don't know, Sagittarius, yeah. धनु राशि में जो गुरु का प्रवेश वक्री रूप में हो रहा है, like it is going back to the Sagittarius from your Capricorn, and with that इसकी वजह से क्या होगा कि गुरु जो होते हैं वो जीवों के ग्रह हैं. गुरु is your human form of your life. So if it is going backward, means Corona will come back on June 30th. So it will be very, very high. The deaths predicted could be in the range of 10,000 to 50,000 in India. After 30th June, you will see a rise of death tolls in India as well as outside in the whole world. तो कोविड अभी नहीं जा रहा है, कोविड जून में भी नहीं जा रहा है, कोविड जुलाई में भी नहीं जा रहा है, अगस्त में भी नहीं जा रहा है, सितंबर में चला जाएगा और सितंबर के बाद नहीं आएगा. Always remember that when a virus goes into a peak, then it shows its tantrums before going away. Because we are not learning which we are supposed to learn. It is important to have a social distancing. It's important to understand that you cannot mingle with people too much. It's over. So ये बहुत important है कि आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को implement करें. Stay away from other places, and I am maintaining social distance. So don't think that I'm not wearing a mask, so I should not be. I am carrying a mask with me. Whenever it's needed, I put it like this, or I have this Indian mask with me. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 30 जून से लेकर सितंबर तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि इसकी दवाई 3 सितंबर तक आ जाएगी. एंड देन डेफिनेटली व्हेन 3rd September there will be a preventive measures or vaccination will come. Then obviously virus will go.
because the contamination you will be given antibodies, आपको antibodies दिए जाएंगे, इंजेक्शंस लगेंगे, तो वायरस 19 सितंबर तक या सितंबर के अंत तक चला जाएगा। बट ये डेथ्स इंडिया में 10,000 से 50,000 तक हो सकती हैं। बट अब दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक बेसिकली बारिश के साथ आएगा, क्योंकि गुरु बेसिकली मार्स बेसिकली आपका पाइसेस में मूव हुआ है 18 जून को। तो पाइसेस मतलब जल तत्व और मार्स मतलब अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। ओके, तो अगर अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व को हम मिक्स करें, अगर धरती और यू नो व्हाट एन ऑसम टेम्पल, लुक एट इट आउटसाइड। सो तो अगर हम धरती तत्व और जल तत्व को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? साउथ दिल्ली में स्पेसिफिकली दिल्ली हिट होने वाली है अर्थक्वेक से। और ये जो टाइमिंग्स है अर्थक्वेक का, ये 21 जून से लेकर 21 अगस्त तक काफ़ी भारी है। एंड बेसिकली 30 जून से यू विल सी चेंजेस। एंड जो भूकंप होगा वो बेसिकली इस तरह से होगा कि आकाश से बारिश हो रही होगी और धरती हिल रही होगी। तो अगर आकाश से बारिश हो रही है, आप बाहर भी नहीं जा सकते, और धरती हिल रही है तो आप अंदर भी नहीं रह सकते। सो इट विल त्रिशंकु काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। तो बट उससे आपको सेफ गार्ड होने के लिए क्या करना होगा? जब आप 30 जून से, अगर हम बेसिकली 31 जुलाई तक है, ये डिवास्ट्रेशन कोरोना के साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ का भी है। आपने यू माइट हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो वेयर आई सेड अबाउट मुंबई अबाउट द साइक्लोन्स। तो जो मंगल, द मार्स विच हैज़ एंटर्ड इनटू पाइसेस, पाइसेस इज योर वाटर साइन, जल तत्व है। तो मार्स जब अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व जब जल तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है, तो भूकंप के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश होती है। अभी जो कल सूर्य ग्रहण हुआ है उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बदली हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी तो ये बदली है कि आप ज़्यादा भगवत ध्यान में चले गए हैं। यू आर थिंकिंग मोर अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट्स अ गुड थिंग। बट कोविड के साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ जब हिट करेंगी, देन द डेथ टोल विल राइज। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देयर इज़ अ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड नारायण स्तोत्र। नारायण स्तोत्र इज़ बेसिकली सेफ गार्डिंग यू फ्रॉम द malefic effects of the planets, as well as planets are inside, they are not outside. हमारे अंदर हैं ग्रह, हमारे बाहर नहीं हैं। तो the planets which are impacting your inner self, they need to be balanced. तो नारायण स्तोत्र का आप पाठ करिए, YouTube पे देख लीजिए, आप पढ़िए, 8 मिनट लगेंगे, 3 बार करिए। 3 बार करने का क्या औचित्य है? ये कोरोना के लिए भी हो सकता है, ये आपके बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो नारायण स्तोत्र बेसिकली 3 बार आपको करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बार अपने लिए, एक बार अपने परिवार के लिए, once for yourself because you are important, then for your family, and then for the whole nation or the community or the world, what you say, means somebody who is outside. So do it for yourself, for your family, for your nation. और जब आप ये करेंगे तो you'll see a difference. आपको एक दैवीय अनुभूति होगी, you'll see a divine intervention coming to help you. नारायण स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, क्योंकि ये शिव तत्व है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और शिव को डीएक्टिवेट करने के लिए मेंटेनेंस तत्व, मतलब आपकी सहायता के लिए विष्णु तत्व को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ओके, तो विद दैट डू दैट। अभी कोरोना दोबारा से हिट बैक करेगा अक्टूबर नवंबर में, येस, लिटिल बिट, येस, बट चला जाएगा इन सितंबर एंड देयर विल बी अ मेडिसिन विच विल कम and people will be given the antibodies and injected with them, and it would be easy going. Okay, लेकिन विक्रम संवत 2080, जो अभी विक्रम संवत 2077 चल रही है, 2077, और 2080 अगर 3 साल बाद की बात देखें, 2023 की बात है। तो 2023 की अगर हम बात करें तो
उस टाइम एक और वायरस हिट करेगा। वो वायरस नॉन वेज फूड से आएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं इट्स गुड, अगर आप नॉन वेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं स्टॉप डूइंग दैट, ओके, क्योंकि दैट विल कम फ्रॉम नॉन वेज फूड एंड दैट विल डेफिनेटली हिट अस। और तो ये 2020 से 23 का समय बहुत ही उथल पुथल वाला है, यू नो, यू आर स्कैर्ड कि जो हमने इतना सारा पाया है अब देने का समय है। इट्स टाइम टू गिव। जैसे गंगा को आप देख रहे हो, शी इज़ गिविंग, शी इज़ नॉट रिसीविंग। नाउ इट्स her time to receive from us the purity, receive from us the silence, receive from us the flow, receive from us the सात्विकता, ओके, पवित्रता। तो इन सारी चीज़ों को रिसीव करने का टाइम है। मैंने कार्ड्स ज़रूर निकाले हैं। आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू शो देम टू यू, but let me try to put my camera somewhere. I'm not carrying my tripod, but I will put my camera somewhere and then I'll show the cards quickly to you related to COVID and earthquake scare. और आप आसमान को देखिए, it's just like about to फटने वाला है। So वो आसमान बाहर नहीं है, it's inside you, ठीक है। ये आपके इंटरनल फियर है जो नेचर में रेजोनेट हो रहा है। So with that, let me take out the cards quickly. So I have already taken out the cards for today, be it earthquake, be it कोविड। तो दोनों के लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो वो कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगा। सो विद दैट, बेटा मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ बाद में। सो विद दैट लेट मी शो यू द कार्ड्स जो कोविड के लिए हैं और जो आपके अर्थक्वेक के लिए हैं। ओके, so I have taken out the cards already. तो अर्थक्वेक का जो कार्ड है, साउथ दिल्ली का बेसिकली डिवास्ट्रेशन ज़्यादा होगा, बट दिल्ली पूरी हिट होगी। पहला कार्ड है डिप्रेशन का, स्लीपलेस नाइट्स का। मोस्ट प्रोबेबली रात को अर्थक्वेक आ सकता है व्हेन पीपल आर स्लीपिंग। उस वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट डिस्ट्रॉय इज़ अ वेरी हार्श टर्म। फैमिली यूनाइट हो सकती है टू फाइट इट, पर उस समय आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होगी। स्ट्रेंथ विल बी इम्पॉर्टेंट टू यू। And finally some lady will save. It would be like divine lady or maybe Mata Kali or Parvati or whosoever you call it. Your internal feminine energy will save you. And with that, आपका जो निवारण होगा वो दान से होगा। सो जितना हो सके उतना दान करिए। दान का मतलब ये नहीं है कि लूट बैठ जाओ और अपने लिए कुछ ना छोड़ो और सबको दे दो। दान का मतलब 10% से होता है। जितना आप कमाते हो महीने में, अगर आप 10%, 2 से 10% अगर आप दान कर देते हो तो इट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10% कर रहे हो तो और सृष्टि में लोग भी 10% कर रहे हैं। तो इट्स गुड कि आप उतना ही करिए जितना आपके मन को सुहाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और फाइनल आउटकम डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड इज़ नॉट दैट पॉजिटिव कार्ड। डिवास्ट्रेशन होगी अर्थक्वेक से, बट इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी कि सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। बट जो लोगों ने नहीं ध्यान दिया है वो तो जा ही रहे, ठीक है। अब इसके अलावा आपका, अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना का पहला कार्ड अभी जून के लिए कार्ड निकला था, तो रेस्टिंग का कार्ड है, जून में नहीं जा रहा है। जुलाई के लिए कार्ड निकला है, जुलाई में थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अगस्त के लिए कार्ड निकला, अगस्त में लड़ने को तैयार हो जाएंगे हम लोग। सितंबर का कार्ड है वेरी गुड, हम उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। और उसके साथ मैजिशियन का कार्ड है, भगवान की भी सहमति है सितंबर में। और हर्मिट का कार्ड आया है, बेसिकली कोई ना कोई ऐसा गुरु, टीचर, कोई ऐसा रिसर्चर या फिर कोई ऐसी संस्था आ जाएगी जो उस एंटीबॉडी को या फिर उस इंजेक्शन को, ओके। तो दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। अर्थक्वेक आएगा बहुत 30 जून से 31 जुलाई का टाइम पीरियड बहुत व्यथित करने वाला होगा। ये जो सूर्य ग्रहण आया है उसके बाद आसमान में बहुत तेज़ बारिशें हो सकती हैं। और अर्थक्वेक जब आएगा तो रात होगी, रात के समय आप सो रहे होगे, सोते हुए चारों तरफ बारिश हो रही होगी, बारिश के साथ साथ धरती हिल जाएगी, ना आप बाहर जा पाओगे ना अंदर रह पाओगे। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आपका नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए 3 बार, एक बार अपने लिए, एक बार अपने परिवार के लिए और एक बार अपने संसार के लिए, बेसिकली भारत के लिए। उसके बाद कोरोना
अभी नहीं जा रहा है, कोरोना सितंबर के बाद वापस नहीं आ रहा है, जून में नहीं जाएगा, जुलाई में नहीं जाएगा, 30 जून के बाद डेथ और ज़्यादा होंगी, अगस्त में नहीं जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सितंबर 3 को एक मेडिसिन लॉन्च हो जाएगी और 19 सितंबर को आखिरी मौत कोरोना से होगी और कोरोना दोबारा नहीं आएगा। लेकिन 2023 में एक वायरस और आएगा नॉनवेज फूड खाने के बाद। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप प्लीज़, व्हाट इज़ नॉनवेज, नॉनवेज फूड मत खाइए, मतलब सिर्फ आप वेजिटेरियन फूड खाइए। वेजिटेरियन इज़ लाइक शाकाहारी खाना खाइए और मांसाहारी खाना मत खाइए। तो विद डैट 2023 तक ये सृष्टि का चक्र चलेगा और जो बच जाएगा वो आगे जाएगा, जो नहीं बचेगा वो उससे आगे जाएगा। बिकॉज सोल लेवल पे आप जो कर पाएंगे, जो आत्मिक दृष्टि से आप कर पाओगे, वो आप फिज़िकल 5 तत्वों में नहीं कर सकते हो, और जो 5 तत्वों में कर सकते हो वो सोल लेवल पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 तत्व में परमात्मा की प्राप्ति सुगम है और सोल लेवल पे दुर्गम है, क्योंकि उसके लिए आपको शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन, कीप ट्यूनिंग इन टू माई चैनल विच इज साई होलिस्टिक हीलिंग्स बाय AK. With that, signing off, and I always share. I always say, sharing is caring. So why don't you share, just like the Ganga does? Okay, share it, purify yourself, detoxify yourself, eat only vegetarian food, drink lot of water, bring lot of positivity in your life. Always smile. Do not be fearful, because corona, earthquake, all these natural calamities come inside you, then they resonate outside. जो प्रॉब्लम है पहले आपके अंदर आती है, उसके बाद इस पूरे संसार में वो प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो आप अपने मन को अगर शांत रखेंगे तो चारों तरफ शांति है, और अगर मन को व्यथित रखेंगे तो गंगा भी व्यथित हो जाएगी। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन, एंड आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन YouTube. Keep sharing, keep caring. With that, why don't you share this video in timeline? Thank you. Bye bye. Take care. Good morning.